What's been happening in the neighboring state of Jharkhand, which is a poll-bound state. The Congress leader, Ghulam Ahmad Mir's will give LPG subsidy even to infiltrators comment has now triggered a huge storm ahead of the second phase of the elections that will be held in Jharkhand on the 20th of November. From Prime Minister Narendra Modi himself to top leaders of the BJP, the attacks on the Congress-JMM alliance are only mounting. Amid the storm over the issue of infiltration, Congress leader Ghulam Ahmad Mir is now trying to put up a defense in a post on the social media platform X. Mr. Mir says that the BJP has mastered the art of twisting statements and that they're insulting the people of Jharkhand by calling them infiltrators. Let's listen in to the leader's remark first, and then we'll also, of course, play out his original comment. कि ये बीजेपी यहाँ पर 20 साल कंटिन्यू हुकूमत की झारखंड बनने के बाद, उसके बावजूद 20 साल के बावजूद भी वो यहाँ के आम जनमानस को किसी किस्म का फायदा नहीं दे पाए। तो इसलिए वो जो हमने सिक्किम में चलाई और जो हमने आगे का एजेंडा दिया है 5 साल का, हमने 7 गारंटीज दी है, वो गारंटीज पर एतमाद है लोगों का। बीजेपी एक तरफ जुमले बोल करके चुनाव में निकल जाते हैं, मगर कांग्रेस या हमारा गठबंधन जो कहता है उस पर डिलीवर करता है। जैसे सरकार बनेगी 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर का कीमत सिर्फ 450 रुपए। ये आम जनता, न उसमें हिंदू देखा जाएगा, न मुसलमान देखा जाएगा, न घुसपैठिए देखा जाएगा, तो न कोई और चीज देखा जाएगा। Now, while the Congress leader and his party are trying to deflect from the subsidy for infiltrators remark, while trying to step up the attack on the BJP on the issue, the Congress is now finding support from its ally, the Jharkhand Mukti Morcha. JMM's Manoj Pandey has defended the Congress leader Ghulam Ahmad Mir and said that the BJP should clearly define who's an infiltrator and who's not. He further asks, are Muslims infiltrators for the BJP? मीर साहब ने स्पष्ट रूप से बोला कि हम सबको देंगे और देंगे, जुमलेबाजी हम नहीं करते, सभी को देंगे। कहने का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आदिवासी, गैर आदिवासी, हरिजन, दलित, तमाम लोगों को। घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी की नजर में कौन है? अगर मुसलमान हो गया तो वो घुसपैठिया हो गया, आदिवासी है तो वो उग्रवादी हो गया, सिख है कोई, पंजाबी है तो वो खालिस्तानी हो गया। इसलिए उन्हीं की भाषा में मीर साहब ने बोला कि घुसपैठियों को भी देंगे, मतलब उन तमाम मुसलमानों को देंगे। Now, throughout this election campaign, the Bharatiya Janata Party has been accusing the Congress of trying to erase tribal identity by appeasing and giving space to infiltrators. Today, on the birth anniversary of tribal icon Bhagwan Birsa Munda, Prime Minister Narendra Modi paid his tribute and hailed his sacrifice to protect the honor and glory of the motherland. Prime Minister Modi also unveiled projects worth rupees 6,640 crores in Bihar that are aimed at the upliftment of the tribal community. On the sidelines, a war of words is now broken out between the Congress and the BJP over Congress leader Ghulam Ahmad Mir's will give LPG at rupees 450 to infiltrators remark. बाबा बैद्यनाथ से हमारी इतनी ही कामना थी कि उस रोग से मुक्ति दिलाएं। ये रोग है लैंड जिहाद का, लव जिहाद का, जिसके माध्यम से जमीन और जनसंख्या दोनों का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। झारखंड वासियों की जॉब्स पर भी अतिक्रमण करने का काम घुसपैठियों द्वारा हो रहा है और ये घुसपैठिए जो यहाँ की जल, जंगल, जमीन और जॉब सब पर अतिक्रमण कर रहे हैं, इस रोग से मुक्ति मिले। अगर वहां पर अलगाववादी या जिनको घुसपैठिए कहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? अमित शाह पर, मोदी जी पर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो ही देखते हैं। हमने सिर्फ इतना कहा है, जो झारखंड का वासी है, नागरिक है, भारत का नागरिक है, हम उसे सारी सुविधाएं देंगे। अब भारत का नागरिक कौन हुई तो आप तय करते हो। लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो मुद्दा हम उठा रहे हैं, ये जेएमएम और कांग्रेस के लिए दामाद की तरह है। कल एक बयान आया था जिसमें कहा गया कि जो गैस के सिलेंडर भी हैं ये घुसपैठियों को दिए जाएंगे। नहीं, जैसा गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है, चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा और जो सरकार है जेएमएम और कांग्रेस की, वो कहती है चुन चुन कर घुसपैठियों के साथ ब्याह कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आके कहे
हमारा माता बहनें कितना सुरक्षित है इस देश में, ये पूरा बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी और सारे लोग घुसपैठी के बारे में जो बात करता है, हमारा सरहद में जो जवान लोग जान दे के हमारा सरहद को रक्षा कर रहा है, उसको अपमान कर रहा है। अगर घुसपैठी है तो ये क्या कर रहा था? तो लिस्ट जारी करने दीजिए। झारखंड में हमारा सरकार है, हम सबको बाहर कर देंगे। ये तो हमने आपको कहा ही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, वो कांग्रेस पार्टी गुलाम अहमद मीर कह रहे हैं कि हम सिलेंडर हिंदू मुस्लिम के साथ में घुसपैठियों को भी देंगे। तो मतलब आपका हक, मेरा हक और किसी तीसरे का हक छीन कर एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है उसको दिया जाएगा। ये एक षड्यंत्र है कि कांग्रेस पार्टी अपना तुष्टीकरण वोट बढ़ाना चाहती है, अब घुसपैठियों को भी वो इस देश का नागरिक बनाना चाहती है। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप घुसपैठियों का समर्थन करके देश की मूल सभ्यता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। Following that remark made by Ghulam Ahmad Mir, Prime Minister Narendra Modi lambasted him as well as the Congress party over the cylinders for infiltrators remark. Prime Minister was speaking in Maharashtra yesterday, the poll-bound state, when he made that comment. Let's listen in. आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए क्या? ये वोट पाने के लिए देश के साथ आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ कैसा खेल खेल रहे हैं, इसका ये उदाहरण है। मोड़ तोड़ के अगर कोई बोलते हैं तो सच नहीं। जो हमारे पास अप्रूव होता है मैनिफेस्टो, वही मैनिफेस्टो सच। उसके लिए हमने हर मैनिफेस्टो बनाने के लिए हमारे बाबा को हमने चेयरमैन बनाया उसका। जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो सच है, जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक है। What's been happening in the neighboring state of Jharkhand, which is a poll-bound state? The Congress leader Ghulam Ahmad Mir's "will give LPG subsidy even to infiltrators" comment has now triggered a huge storm ahead of the second phase of the elections that will be held in Jharkhand on the 20th of November. From Prime Minister Narendra Modi himself to top leaders of the BJP, the attacks on the Congress-JMM alliance are only mounting. Amid the storm over the issue of infiltration, Congress leader Ghulam Ahmad Mir is now trying to put up a defense. In a post on the social media platform X, Mr. Mir says that the BJP has mastered the art of twisting statements and that they're insulting the people of Jharkhand by calling them infiltrators. Let's listen in to the latest remark first, and then we'll also, of course, play out his original comment. कि ये बीजेपी यहां पर 20 साल कंटिन्यू हुकूमत की झारखंड बनने के बाद, उसके बावजूद 20 साल के बावजूद भी वो यहां के आम जनमानस को किसी किस्म का फायदा नहीं दे पाए। तो इसलिए वो जो हमने सिक्किम में चलाई और जो हमने आगे का एजेंडा दिया है 5 साल का, हमने 7 गारंटीज दी है, वो गारंटीज पर एतमाद है लोगों का। बीजेपी एक तरफ जुमले बोल करके चुनाव में निकल जाते हैं, मगर कांग्रेस या हमारा गठबंधन जो कहता है उस पर डिलीवर करता है।